So this is one of the most important topics. This is one of the most important topics so far that we have discussed. उसका नाम क्या है? Rectifier circuits. We have two types of rectifiers. One is half-wave rectifier and another is full-wave rectifier. नाम से ही पता चलता है कि डिफरेंस क्या है इन दो में. एक हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है और दूसरा फुल साइकिल को रेक्टिफाई करता है. जनरली अभी तक जो भी मैंने डायग्राम दिखाई वो फुल साइकिल को लेके दिखाई. तो इसका जनरली मैंने अभी जो भी फिगर्स दिखाए वो क्या दिखाए? फुल साइकिल को लेके. क्योंकि जब भी मैं पल्सेटिंग डीसी बनाता था तो आई यूज्ड टू शो टू पॉजिटिव साइकिल्स देयर, right? So, but when I talk about a half-wave rectifier, I will use this abbreviation. So I give my input to a half-wave rectifier, जो कि एक साइन वेव होगी. सपोज ये मेरा इनपुट है. ठीक है. Then I expect my output to be somewhat like this, like this precisely. I will only यहां से यहां तक, if this is pi, this is 2 pi, right? And by the way, this is the time period of the wave, right? ये पूरा माना जाता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव लेके टाइम पीरियड ऑफ द वेव. तो ये पूरा पीरियड है, टाइम पीरियड, राइट? So this is the half cycle and this is the, or rather this is the positive half cycle and this is the negative half cycle, right? Now half wave rectifier क्या करता है? ये खाली एक ही साइकिल को रेक्टिफाई करता है, दूसरे टाइम नहीं करता है, उसको जीरो ही रखता है. फिर से जब पॉजिटिव आया उसको रेक्टिफाई करेगा, रादर पॉजिटिव मेंटेन करेगा या उसको पास करेगा. बेहतर ये है कि पॉजिटिव साइकिल को पास करेगा, नेगेटिव को जीरो कर देगा. And how will the waveform of a half-wave rectifier look like? We have positive cycle, then zero cycle. We have another positive cycle, and then the zero. Can you make this diagram please on your own? So if this was Vm, this will continue to be Vm. But this minus Vm is no more. It becomes zero. So this is called as a half-wave rectifier. इसका जो नेचर होगा, या मैं कहूं कंडक्शन एंगल जो होगा, वो खाली 0 से पाई तक होगा फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल. आइज ऑन बोर्ड प्लीज. फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल इट इज अप टू 0 to pi, while as pi to 2 pi it is 0, that you can see. तो ये वाला पॉइंट क्या है? pi, and this one is 2 pi, and so on. Then this will be 3 pi, and this will be 4 pi, likewise here 3 pi, 4 pi. So ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में. So on the contrary, अगर यही सर्किट अब फुल वेव रेक्टिफायर होता तो क्या होता? फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? आप आगे आ जाओ. रहने दो आप, बस सिर्फ ये सामने से बैंड हटा दो. आप बैठो. नहीं, बस बीच में रखो इसको, बस रखो बीच में. आप बैठो आराम से. That's fine. So this is for a full wave rectifier. What it does, it not only allows the positive half cycle, but it reverses the polarity of the negative half cycle and makes that also a positive half cycle. And that appears at the output. ठीक है? Likewise for this positive, this is positive, so output आएगा positive. And negative half cycle reverse polarity होके positive आएगा. ठीक है? So ये किसका आउटपुट है? जल्दी से इसको बना लो. वो फुल रेक्टिफायर था. ये तीनों डायग्राम 1 2 3, सॉरी हाफ रेक्टिफायर था 1 2 3 डायग्राम्स, एंड फुल रेक्टिफायर के लिए 1 2 3 डायग्राम्स अगेन.
I want to see this on the notes of everyone right now. So moving on, we first will try to understand a half-wave rectifier. Very easy, very important, and very quickly we'll go through this. First thing first, circuit diagram. We'll start with heading half-wave rectifier. लिखिए हम नए से heading half-wave rectifier. उसकी पहली सब heading is circuit diagram of half-wave rectifier. You can use the short form even in the exam if you feel like. एक रेक्टिफायर स्टार्ट ही होता है एक ट्रांसफार्मर से. हम यहाँ आइज ऑन बोर्ड प्लीज. हम यहाँ इस इनपुट साइड से अप्लाई कर रहे हैं एक वोल्टेज विच इज विच टाइप ऑफ वोल्टेज? एसी वोल्टेज. कैसे पता चला आपको? साइनोसाइडल वोल्टेज. सो इट हैज टू बी एन एसी वोल्टेज जिसका पीक वैल्यू होगा सम वीपी. ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा. उसको किसमें? अगले स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. हाँ जी बेटा आप बताओ. अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो ये वीपी साइन ओमेगा टी को किसमें कन्वर्ट करेगा? पहले एसी में कन्वर्ट करेगा कि डीसी में? बस सोच के बताओ, डरने के बगैर सोच के बताओ. हाँ अपने दिमाग से बताओ. आपका दिमाग क्या बोल रहा है? एसी में कन्वर्ट करेगा. उस एसी का एम्पलीट्यूड अब हायर होगा कि लोअर होगा? अगर ये एक स्टेप डाउन, मैं इससे पूछ रहा हूं ना, आप क्यों जवाब दे रहे हो? हाँ कैसे? Excellent, you're absolutely correct because it's a step down transformer. So let me name that voltage as Vm sin omega t. Okay? यहाँ पे Vp दिया था, यहाँ पे हमने Vm दिया. Vm is any value which is lower than your exact value. So when I have my positive over here because of ये transformer actually induction की वजह से, so your positive peak will be over here and your negative will be over here. So at a given instant of time this point will either be a positive point or negative point. Depend करता है आपके input का positive cycle है या. I repeat, this is an important point. Pay attention please. I said this point, ये वाला point at a given time can either be a positive voltage point or a negative voltage point. Depend करता है किस पे? आपके input पे. उसका इस टाइम पॉजिटिव पीक है या नेगेटिव पीक है? सपोज इफ इट्स पॉजिटिव पीक तो ये वाला पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा, ये वाला नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा. अगर नेगेटिव पीक है तो ये नेगेटिव माना जाएगा, ये पॉजिटिव माना जाएगा. गेट माय पॉइंट? क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नहीं? ओके. मैंने कहा एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारे पास है ना दो साइकिल्स. अब ये आपका सपोज वीपी है, ठीक है, ये आपका माइनस वीपी है. जब आपका वीपी होगा, एज्यूम करो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ इंडक्शन, ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव होगा, और ये वाला पॉइंट नेगेटिव है तो ये वाला पॉइंट भी नेगेटिव होगा. ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के लिए. अब नेगेटिव साइकिल जब आया तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव होगा, ये वाला माना जाएगा पॉजिटिव. Likewise, because of that negative, ये वाला नेगेटिव आएगा, ये वाला आएगा पॉजिटिव. ठीक है ना? कोरिलेशन है इसमें और इसमें. पहले आप इसमें और इसमें कोरिलेशन समझो. एंड ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव ही होगा. उसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? ओके. So let the ratio be
N1 is to N2. Therefore, we can say that your Vp by Vm will be equal to N1 by N2 right? This is your load resistance. Load resistance का मतलब क्या हुआ? जहां पे हम अपना आउटपुट लेते हैं ये पर इस पर आउटपुट शून्यवांश है. So this voltage over here will be your V out, output voltage. जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा मतलब जो आप इनपुट वोल्टेज साइकिल वहां पे दे रहे हो आउटपुट वोल्टेज साइकिल आपको यहां से मिलेगा. ठीक है. अगर आप ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे लैब में देखा ना आपने वो वायर्स दो थी जहां जिससे आप मल्टीमीटर कनेक्ट करते थे वैसी ही दो वायर्स होंगी ऑसिलोस्कोप पे. ऑसिलोस्कोप था ना वहां पे याद है कोई डिवाइस होता है ऑसिलोस्कोप डू यू रिमेंबर? उस पे मैंने क्या कहा था हम इस पे क्या चेक करते हैं? एनीवन हु रिमेंबर्स? नेचर ऑफ द वेवफॉर्म राइट. सो यहाँ पे दोनों साइनोसॉइडल वेव्स है लेकिन एक का पीक वैल्यू काफी ज्यादा है दूसरे का कम है या एक पॉजिटिव साइकिल में भी होती है नेगेटिव में भी एग्जिस्ट करता है. दूसरा खाली पॉजिटिव में एग्जिस्ट करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल जब उसका होगा तो तब ये जीरो होगा. ठीक है. हो क्या रही है रेक्टिफिकेशन राइट. टारगेट क्या है? रेक्टिफिकेशन. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट जरा लिखो. फॉर एन आइडियल सर्किट या आइडियल डायोड सर्किट this is a very important lecture. Unfortunately so many students are not here but this is very important in terms of understanding the subject and further topics also. So every one of you please tell them that to go through this. भले उसमें अगर आपके कुछ दुश्मन भी होंगे उनको भी होगा. ठीक है. दोस्तों की तो बात है. So considering that ideal diode circuit एनालिसिस देखिए साइड में एनालिसिस पार्ट. अब एनालिसिस में हम क्या करेंगे? फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल योर डायोड या मैं सीधा लिखूंगा D1 इज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉइंट पॉजिटिव है राइट. ओ बच्चे सब लोग ध्यान दें एक मिनट. पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है. आर यू विद मी ऑन दिस? आर वी ऑन द सेम पेज? ओके. सो व्हेन दिस पॉइंट इज पॉजिटिव दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस. अच्छा सो जाता थोड़ी. ठीक है. ओके. ये आप बताओ फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है? आप बताओ. फॉरवर्ड बिकॉज पॉजिटिव वोल्टेज किससे मिल रही है? P से राइट. यू नो दिस लॉजिक? यू टू नो दिस लॉजिक? आपको भी पता है नहीं? यस और नो? ओके गुड. सो दिस इज फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस मींस शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? आप ही बोलो तो इसे. फॉरवर्ड बायस मींस शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? शॉर्ट सर्किट. Accurately well said. So when this is the short circuit, therefore I can replace the circuit as, I can redraw the circuit as, ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है? शॉर्ट. और सिंपल रेजिस्टर एंड में होगा RL. So can I say that the equivalent circuit will be like this? You make this equivalent circuit please. So that means whatever appears here Vm same voltage यहाँ पे भी हो क्योंकि मैं बस एक रेजिस्टर पे इसका आउटपुट ले रहा हूं. So output will be same as input, that is Vm sin omega t, or I can say output will follow the input. Better word है output will follow the input, that is Vm sin omega t. तो हम कहां पहुंचे इस वक्त? फिलहाल हम इस पॉइंट पे पहुंचे. ये जी हमारा इनपुट आया और हमारा जो आउटपुट होगा वो भी एग्जैक्टली इस टाइम ऐसा ही होगा. ये हमारे पॉजिटिव हाफ का साइकिल है ना.
बाय पॉजिटिव हाफ आई मीन जब भी जीरो से थोड़ा वोल्टेज ज्यादा है ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. आइज ऑन बोर्ड प्लीज, ये पॉइंट मिस कर गए. आइज ऑन बोर्ड प्लीज. ओए आइज ऑन बोर्ड क्या होता है? देन इट शुड बी आइज ऑन बोर्ड. आई सेड आपने किसी ने पूछा नहीं सर ये फॉरवर्ड बायस कैसे रहेगा कंटिन्यूअसली. मैंने क्या कहा ये आइडियल डायोड है और आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए जीरो से थोड़ी सी भी वोल्टेज ज्यादा होगी ये क्या रहेगा? जीरो से ज्यादा वोल्टेज क्या करेंगे इसको? चला पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? एनीथिंग दैट इज अबव जीरो इज पॉजिटिव वैल्यू, राइट? सो इस केस में ये मेरा इनपुट था ना जो यहां से आ रहा है, जो ही मेरा वैल्यू जीरो से ऊपर हो गया ये वाला वैल्यू, तो ये बनाएगा इस पॉइंट को पॉजिटिव. पॉजिटिव बनाया तो डायोड फॉरवर्ड बायस. अब यहां डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया रिवर्स बायस. कैसे? बिकॉज अभी पॉजिटिव है. यहां डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस यहां पे फॉरवर्ड बायस, अब भी फॉरवर्ड बायस और यहां पे फिर नो बायसिंग हो जाएगी बिकॉज जीरो आ गया. सो दैट्स व्हाई आई से दैट आउटपुट विल कंटिन्यूअसली फॉलो द इनपुट. क्योंकि फॉर ऑल द केसेस इट इज बिहेविंग एज अ शॉर्ट सर्किट. सो ऐसा है कि पावर सप्लाई हमारे सामने और हमने इसमें मल्टीमीटर लगाया है जो हम लगाते हैं. हम उसमें पावर सप्लाई में वैल्यू चेंज करें, मल्टीमीटर में भी चेंज वैल्यू हो रहा है. मल्टीमीटर इज फॉलोइंग द पावर सप्लाई. लाइकवाइज यहां पे जो भी इनपुट आएगा एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा. अब मसला है हमारे नेगेटिव साइकिल का. मुझे क्या कोई है यहां पे जो बना सकता है नेगेटिव साइकिल के लिए बिहेवियर क्या होगा? आप बना सकते हो? नेगेटिव साइकिल के लिए क्या बिहेवियर होगा? आ जाओ जल्दी से आ जाओ, सामने आ जाओ. अरे आप सामने आ जाओ, मैं आपके लिए हूं ना यहाँ पे हेल्प करने के लिए. आप आ जाओ जल्दी से. So very quickly I will go to this part, that is negative half में क्या होगा? पॉजिटिव हाफ सबको समझ आ गया and nicely done. यहाँ पे मिटाने की जरूरत नहीं थी, अलबत्ता ये वाली डायग्राम को चेंज करना. पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा हो गया, सबको समझ आया. Now for the negative half cycle I will just change it with the black marker. For the negative half cycle D1 is off. Sorry मैं on लिखना भूल गया था पिछले केस में, तो यहाँ पे on लिखना था मुझे. बट अब D1 ऑफ होगा. D1 ऑफ होगा. इक्विवेलेंट डायग्राम मैं इसी को लेके बनाऊंगा. इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनेगी, बाकी सारा सेम है ना. So that means that the circuit does not complete. सर जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. Eyes on board please just for 2 minutes. I'm saying when diode D1 is off, this diode being off means that circuit will not be complete. उस वजह से रेजिस्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. जब रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगी तो V is equal to I into R. When I is zero, V obviously is zero. Therefore V will be continuously zero as long as this value, input value, does not cross this line. So the moment this crosses this line, it will show me a positive cycle again, and then zero again, then positive cycle again, then zero again. So this is the half wave rectifier. How much easy it is? Simple. कोई complex चीज नहीं है. बस ये इस चीज को समझना है कि इनपुट की वजह से नेगेटिव होने से ये नेगेटिव हो गया और ये पॉइंट इसका उल्टा होता है. ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव. इसी को लेकर हमें आगे चलना है. ठीक है जी. ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक. कितना टाइम अभी बचा है हमारे पास? 4:20 तक है ना क्लास. Okay, we'll stop here because we have not marked the attendance. But all those who are not here, they make our it for sure.